ही बड़ी दुखदायी खबर मिली कि हमारे 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए। तो सुबह सुबह ही हमारे इज़्ज़तमाब जॉइंट डायरेक्टर मोहतरम रोशन लाल जी ने मुझे फ़ोन करके ये हुक्मनामा दिया कि आज रियासती कौंसल बराए तालीमी तहकीक व तरबियत के सूबाई दफ्तर कश्मीर श्रीनगर के दफ्तर में एक सोग समारोह का एहतमाम होगा, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हवाले से उनकी खिदमात के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात होगी। आज पूरा मुल्क गम में डूबा है। क्यों? क्योंकि आज सुबह ही ये बुरी खबर सुनने को मिली कि हमारे देश के 2 बार रहे वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो माहिर इक़्तिसादियात के तौर जाने जाते हैं, तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा सभी अरकान को कि हम उनके हक़ में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करें खड़े होकर। आज मुझे बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारी इस दुनिया में नहीं रहे। उसका मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे बल्कि एक इकॉनमिस्ट भी रहे हैं। जब 1991 में हमारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट था बहुत ही स्लो डाउन हो गया था, तो उस दौरान उन्होंने जीडीपी की जो है रेशो काफ़ी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो था वो अट्रैक्ट हो गया था इंडिया की ओर। तो इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। तो इसके लिए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो आत्मा है उनको जो है शांति मिले और स्वर्ग में उसका निवास हो। और हम ये भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो रूह है वो किसी न किसी रूप में फिर जन्म ले हमारे हिंदुस्तान में, जो कि कमियां रह गई हैं वो पूरी हो सकें। तो एक बार फिर जो है मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, और इसके परिवार को और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सदमे में है। तो जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दैट इज द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। व्हेन इन 1991 ड्यूरिंग 90s India was completely in the grip of crisis, or we can say in other words that the hefty physical deficit where the country was gripped. So far the figures we have, in 1991 India were facing the physical deficit of 8.5% of its GDP. It is the grave situation, although this 8.5% of GDP looks a small figure for a common man. But when we say that this is the percentage out of the GDP, this is the great thing for the India. And this is the alarming situation. Not only this, but the term which the common people may or may not know, that is the BOP, balance of payment, in which we have the 2 accounts, that is current account and the capital account. That deficit was 3.5% of the GDP of India at that time. And in 1991, India's foreign reserves was only 1 billion. And when we calculate that, at that time it was just to pay the imports for 2 weeks to cater the need. But at the same time, I will say you this thing, that because of the policies which has been adopted by the great leader Manmohan Singh, and we came out from that grip and our reserves reached to the 600 billion in 2009. We reached this conclusion that we came out from that crisis period or those deficits, and
And a new economic policy has came that garnered us growth momentum of 9%, energy security, food security, and livelihood, more inclusive and balanced growth, employment creation, industrialization. And his main thought was cooperation amongst the SOC. He always wants the cooperation, not confrontation. He was always in this thought that no power on earth can stop an idea whose time has come. Former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, left this mortal world today. SCRT feels sad, we all feel sad that this country has lost a noble soul, an intellectual of par excellence, a man who would speak less but will act more. I have seen one of the famous movies, his biopic on the accidental Prime Minister, and I have read the book, The Accidental Prime Minister by Sanjay Bharov. And no doubt, this book was criticized. It was said that this is presenting Dr. Manmohan Singh in a negative way, but 99% of this book tells about the great achievements of this great man. आज वर्ल्ड ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही नहीं बल्कि एक अच्छे स्टेट्समैन को ही खोया है। हमारी कंट्री इस सदमे से उभर नहीं पाएगी क्योंकि मनमोहन जी के हम बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने इंडिया को 91 की क्राइसिस से उठा के आज वर्ल्ड के फेमस कंट्रीज़ में खड़ा किया है। तो उनको हम आज खराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत दुख की घड़ी है कि आज हमने अपने प्रधानमंत्री, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको खो दिया। भारत के बहुत ही बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट थे और जिन्होंने भारत को एक चरम सीमा पर लेने में बहुत मेहनत की। एक दिग्गज जो ब्रेन है वो आज हमने खो दिया। इट्स अ बिग लॉस टू आवर ओन कंट्री। एंड पर्सनली भी मैं बताऊं, मैं उन्हें बहुत एडमायर करती थी और जिस तरह से उन्होंने भारत को सक्सेस के राह पर लेने में एक रास्ता चुना, अगर वो रास्ता वो ना चुनते तो शायद आज भारत देश जिस कड़ी पे खड़ा है इस पे ना खड़ा होता। तो मैं बहुत शौक़ के साथ उन्हें इस आखिरी चरण की यात्रा पर उन्हें एक सुप्रीम एक एक्सप्रेस करती हूँ, अपना दुख व्यक्त करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब लोग आज ये एक फ़ैसला लें कि जो सपना उन्होंने देखा था और कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, उस अधूरे सपने को हम पूरा करने में योगदान दें।